بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ذی قدر ذی وقار سامعین، عید الاضحیٰ کا بڑا مبارک دن الحمدللہ آج آن پہنچا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دربار میں درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کی ابھی جو قربانی ہونی ہے، اللہ ہماری تمام ساتھیوں تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بھائیو، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی ابن آدمی، فرمایا کہ آدمی کا قربانی والے دن سب سے بڑا اور افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا احراق الدم، قربانی کا ذبح کرنا، اللہ کے لیے خون بہانا۔ اس سے بڑا عمل آج کے دن کا کوئی نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت اونچا اور بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری حدیث سنیے گا۔ ما عمل ابن آدم، فرمایا بندے کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے یوم النحر عملا، قربانی والے دن عملوں میں سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو قربانی والا خون بہایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بندہ یہ سوچے یار میں قربانی نہیں کرتا، چلو یہی پیسے میں غریبوں کو صدقے میں دے دیتا ہوں، یہی پیسے میں کسی بچی کی شادی میں لگوا دیتا ہوں، کسی بیوہ یتیم فقیر مسکین مدرسہ کسی کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ احراق الدم اور قربانی کا ذبح کرنا، اس سے بڑا عمل آج کے دن کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بندہ قیامت کے دن جب آئے گا، قربانی کرنے والا بندہ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، فرمایا بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وہ جانور کے سینگ اور جانور کے پاؤں کے کھر اور جانور کے جو ناخن اور یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے آئے گا قیامت کے دن۔ کیا مطلب ہے؟ جب قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ان چیزوں کو رکھ کر اعمال کا وزن پورا کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کو بڑھانے اور وزن کے بڑھانے کے لیے یہ بہت بڑے معاون ثابت ہوگا یہ عمل انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ، یہ جو خون بہتا ہے قربانی کا ذبح کرتے وقت یہ جو خون بہتا ہے لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی قربانی والے جانور پر چھری چلا کر خون جب نکلتا ہے ابھی وہ قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بڑے کمال کا عمل آج آپ کرنے لگے ہیں، اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے جمعوں پر حدیث سنائی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، یا رسول اللہ جب ہم اس قربانی کو ذبح کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے،
فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اے میرے امتیوں، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا فصوف، یہ جو اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابہ کے ذہن میں آیا نا، چلو بھائی جانور کے بال تو تھوڑے کچھ گننے میں ممکن ہے آ جائیں، لیکن وہ جو اون ہوتی ہے وہ تو گنی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک چیز علماء نے لکھی ہے وہ سمجھیے گا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہوگی، فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے بال گنے گا، بھائی اس کے اتنے لاکھ بال ہیں، اس کو اتنا ثواب دے دو، اس کا مطلب یہ ہوا۔ پھر جس نے دمبے کی قربانی کی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جس نے بھینس کی قربانی کی، بھینس کے بال کم ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جس طرح جانور کے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ بھی گنا نہیں جا سکے گا، اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، اس عمل کو ذوق شوق کے ساتھ کرے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ انعام، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔ میرے نبی اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے، اعلان کر کے سنا دے، ان صلاتی، جو میں نمازیں ادا کرتا ہوں میری نماز اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو دکھلاوا اس میں نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میں نمازیں ادا کرتا ہوں۔ نمبر 2، وَنُسُكِي، میری قربانی محض اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسے نو دکھلاوا مقصود نہیں ہوندا، نام اونچا کرنا مقصد نہیں ہوندا، اپنا نام بڑا کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ للہ، اللہ راضی ہو جائے۔ سورۃ انعام کے آخر میں یہ آیت ہے، یہ ہمیں سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھنے آئے ہو عید والے دن تو نیت یہ نہ کرنا یار لوگ کہیں گے عید ہی نس پڑی، اے مقصد نہ ہوئے، بلکہ یار میں عید ادا کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نمبر 2، وَنُسُكِي، میں قربانی کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا، او میرا نبی، تیری نماز اور قربانی صرف نہیں بلکہ تیرا تو ہر عمل میں اللہ کے لیے ہے۔ سارے عمل کیسے گنوائے گا؟ لوگوں کو 2 جملے سنا دے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پہلا جملہ، پہلا لفظ فرمایا وَمَحْيَايَ، میری ساری کی ساری زندگی للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا لوگو، میری زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَمَاتِي، اور میرا فوت ہو جانا، میرے اوپر موت ہو جانا، آ جانا، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے یار میرا مرنا پرنا تیرے نالے، ادھر کے مطلب ہے مرن تو بعد ہی میں تیرے نالا، مقصد کیا ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر میں تیرا ساتھی ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی عرض کر رہے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میری زندگی اور میری موت، ہر عمل للہ، ایک اللہ کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کے لیے کیوں نہیں تھا؟ باب ابراہیم کے لیے کیوں نہیں تھا؟ کسی فرشتے کے لیے کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، رب العالمین،
आलमीन, सारे के सारे जहानों का रब जो अल्लाह है, तो इस बात का हकदार भी अल्लाह है कि अमल भी अल्लाह के लिए किया जाए। साथियों, जिस ज़ात ने पैदा किया, जिस ज़ात ने ज़िंदगी में नेमतें दी हैं, जिस ज़ात ने क़यामत का दिन बनाया है, जन्नत बनाई है, हक भी उसी का है, इबादत भी उसी की जाए। तो याद रखो, अकीदा भी यही होना चाहिए, मेरी तमाम तर इबादतों का हकदार कौन है? अल्लाह की ज़ात है। आगे से अल्लाह के नबी ने अगला जुमला क्या फरमाया? फरमाया ला शरीका लहू। ओ लोगो, मेरी हर अमल अल्लाह के लिए क्यों है? वो रब्बुल आलमीन है, और ऐसा रब है ला शरीका लहू, कोई उसका शरीक ही नहीं है, कोई उसका पार्टनर भी नहीं है। वो तने तन्हा अकेला इस बात का हकदार है कि मेरी कुर्बानी, मेरी नमाजें, मेरे आमाल, मेरा मरना जीना सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तो फरमाया ला शरीका ला, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं है। वबे ज़ाले का उमिर, तो खोल लेना कुरान, सूरत अनाम के आखिर में ये आखिरी रुकू भी आयतें मौजूद हैं। फरमाया वबिज़ाले का उमिर, तो ओ लोगो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात का हुक्म दिया गया है। क्या मतलब? कि मेरा हर अमल अल्लाह के लिए हो। और सुनो लोगों, वअना अव्वलुल मुस्लिमीन, अल्लाह के हुक्म मानने वालों में मैं मोहम्मद का पहला नंबर है। अल्लाह आखे ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब तो पहले अमल करके दिखा देता है। भाइयों, ये आयतें बतला रही हैं कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, तो हमारा अमल अल्लाह ही के लिए हो। अगर कोई बंदा अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखते हुए अपना ये कुर्बानी वाला अमल करता है, फरमाया अभी उसके खून का कतरा, हदीस अभी सुनाई आपको, उसके खून का कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरा होता, अल्लाह उसे पहले कबूल फरमा देता है। इसलिए साथियों, जिस वक़्त कुर्बानी करने लगो, अपनी नीयतें खालिस कर लो। मसाइल के जुमे पर मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था, जब ज़बा करने लगो उस वक़्त अपनी नीयत को ज़रा टटोल लेना। कोई दिखलावा तो नहीं है, कोई नंबर नुमाइश करना तो मकसद नहीं है, कोई और फतूर तो नीयत में नहीं है। खालिस परख कर अपनी नीयत अल्लाह के लिए करना और अल्लाह से दुआ करना। बेशक हाथ ना उठाओ, खैर है, दिल में कहना अल्लाह हादा अल्लाह का, अल्लाह मैं सिर्फ तेरे वास्ते प्या करदा और कोई लालच कोई नहीं। अल्लाह हादा अल्लाह का, अल्लाह मैं तेरे वास्ते प्या करदा। इस वास्ते अपनी कुर्बानियों को खालिस बनाओ, अपनी कुर्बानियों को अल्लाह ही के लिए बनाओ। आखिरी आयत सुनिएगा, फिर मैं चंद मसाइल अर्ज करूंगा। कुरान मजीद में सूरतुल हज में अल्लाह ने फरमाया, ओ लोगों वाली कुल्ले उम्मती जालना मनसका, ए मेरे मोहम्मद के उम्मतियों, इन्ना समझना जो सिर्फ तुहाडे ते कुर्बानी लाजिम है। रोज़ों का हुक्म दिया ना, रोज़ों का, आपको याद होगा अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ओ लोगो ईमान वालो, रोज़े तुम पे फ़र्ज किए गए। ते ये ना समझना सिर्फ साडे वास्ते हुक्म है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम में से जो पहले गुजर गए उन पर भी रोजे फर्ज थे। इधर अल्लाह फरमा रहा है वलिकुल्ले उम्मतिन, वलिकुल्ले लफ्ज़ ही बता रहे हैं, वलिकुल्ले हर एक के लिए, किसके लिए?
उम्मतिन उम्मत के लिए, हर उम्मत के लिए अल्लाह फरमाते हैं जालना, हमने बनाया ये हुक्म। कौन सा? मनसा का, कि हर उम्मत में कुर्बानी का हुक्म था, हर उम्मत में। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हाबील और काबील ने कुर्बानी पेश की। वाकया कई दफा सुनाया आपको, वाकया सुनाना मकसद नहीं, बात की अहमियत बतलाना मकसद है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी पेश की, करते करते सबसे बड़ी कुर्बानी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पेश की है। क्या कुर्बानी है? कोई घास का गठड़ा नहीं है, कोई 1000 2000 लाख 2 लाख रुपया नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती नेमतों में से एक नेमत औलाद। और जेदे पैर ते कंडा लगे तो मां प्यो दी आह निकल जाती है। ऐसे ही है ना, बाप के बेटे के पांव पर कांटा चुभे तो माँ बाप के सीना चिर जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कमाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह पाक ने उनको क्या, तो अल्लाह ने क्या फजीलत अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर फलम्मा बलग माहु साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर मादा तरा काल या अबते इफअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अपने बेटे के गले पर छुरी चलाते हुए ख्वाब दिखा दिया। करते करते जब वो मौका आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने बेटे को लिटाया। तवज्जो करना जरा यार, आखिरी जुमला। अपने बेटे को लिटाया, लिटा कर छुरी चलाने लगे। अल्लाह ने कुरान में सूरह साफात में फरमाया फलम्मा अस्लमा। गौर करें जरा, मैं पीछे जाऊं जरा। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। क्यों? व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला हुक्म मानने वाला हूं। यही सुनाया ना भी आपको। इधर देखो, मुस्लिमीन से फरमाया अस्लमा, मेरे इब्राहीम ने और मेरे इस्माइल ने मैं अल्लाह का हुक्म मान लिया। अस्लमा यानी इसको अपने जबान में माना करूं। इब्राहीम पैगंबर चाहते हैं मैं अपना बेटा ज़बा कर दूं अल्लाह का हुक्म मानकर। इस्माइल अलैहिस्सलाम चाहते हैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए मैं ज़बा हो जाऊं। दोनों की दिल की गहराइयों की आवाज थी, हमारी जान चली जाए अल्लाह राजी हो जाए। हाँ मुसलमानों, अपना माल कुर्बान करने लगे हैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद। उस वक़्त दिल में नीयत ये रखना, अल्लाह और मेरे शुक्र है तूने मुझसे औलाद नहीं मांग ली, तूने माल की कुर्बानी मांगी है। मौला मैं हाजिर हूँ, बस तू मेरा माल कुर्बान करना अपनी बरगाह में कबूल फरमा ले, खालिसतन अल्लाह के लिए। और एक तो मसले टाइम पूरा हो गया। जानवर को ज़बह करने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबका जो मैं बताया। एक बात, दो तीन मसले जो इससे रिलेटेड है वो समझिएगा। जानवर को ज़बह करते हुए आपने जब उस पर छुरी चलानी है तो छुरी चलाने वाला एक तो तेज धार आला अपने पास रखे, छुरी कटर जो भी है तेज धार अपने पास रखे। नंबर दो, चलाते हुए जो शरीयत ने अल्फाज बतलाए हैं बस वही जिक्र करने हैं, वही पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या फिर आता है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बस। उसके बाद याद रखिएगा, अगर कोई बंदा कहता है या अल्लाह का नाम तो पहले कलमे में भी है, चलो मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमे के दोनों अज्जा पढ़े, जानवर हराम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस ज़बह के वक़्त सिर्फ अल्लाह का नाम लेना था, सातों ने नबी का नाम ले लिया। तो यहाँ से एक मसला समझिएगा, कुर्बानी अल्लाह के नाम की होती है, उस ज़बह के वक़्त नाम भी अल्लाह का लेना है। अगर कोई किसी फरिश्ते का, नबी का, वली का नाम लेगा जानवर हराम हो जाएगा। ठीक है,
जानवर कुर्बानी करते वक्त सिर्फ नाम लेने से हराम हो जाएगा, पूरा बकरा ही जाके किसी दरबार पे ज़बह करो वो हलाल होगा है, वो भी हराम होगा। इसलिए तो कुरान मजीद में अलहदा करके जिक्र फरमाया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकार कर कोई भी चीज आपने दी है तो वो बिल्कुल खिंजीर और दमे मसफूह और हराम से मुर्दार से ज्यादा बढ़कर हराम है। इसलिए ज़बह के वक़्त इस बात का ख्याल रखें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर ये करके ज़बह करें। सारे जो जानवर को पकड़े हुए लोग होते हैं सब पर लाजमी नहीं है, जो छुरी चलाने वाला है सिर्फ उस पर लाजिम है, ठीक है, उस पर लाजिम है। ज़बह करने के बाद आप जानवर का खून निकलने दें, ये सारी तफसीलें हो गई। उसके बाद शरीयत के मुताबिक उस जानवर का गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाए जिस तरह शरीयत हुक्म देती है। सूरत हज टाइम चूँकि बड़ा शार्ट था तो शरीयत ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक अल्लाह फरमाता है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, सारा उठा के फ्रिज में न रख देना, फ़कीरों का हिस्सा भी निकालना। फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, जो जानवर ज़बह करोगे कुर्बानी का उस जानवर का सारा गोश्त फ्रीज में स्टॉक न कर देना, उसमें से उन लोगों को देना जो तुमसे सवाल करें। और कुछ ऐसे यानी हया वाले लोग होते हैं जो फ़क्र होते हुए गुर्बत होते हुए सवाल तक नहीं करते, उनका भी ख्याल रखना। इसलिए भाइयों ये कुर्बानी है, कुर्बानी देनी होगी, इससे बड़े इनामात अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही तरीके से कुर्बानी अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। नमाज का तरीका आपको आता ही होगा इंशाअल्लाह, ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका। चलो इसलिए उलमा रिपीट करते हैं भाई यार साल के बाद एक या दो ईदें पढ़नी होती हैं ना तो लोगों को भूल जाता है। आजकल तो ऐसे हाफजा हो गया भाई ये नहीं पता होता रात सालन के रखा है, इन्होंने साल बाद के तरीका याद हो सी भाई कितनी तकबीर ते कितनी रकातन, शॉर्टकट रिपीट कर देता हूँ ताकि बात ताज़ा हो जाए। 2 रकात ईद उल अज़हा वाजिब, 7-6 तकबीर ज़ायद, बस ये इजाफी चीज़ जो है ईद उल अज़हा की 2 रकात हैं और 6 तकबीरें ज़ायद हैं। मुँह मेरा काबे की तरफ पीछे से मांग के अल्लाहु अकबर, ये नीयत दिल में करना ज़रूरी है। ज़बान से उलमा ने फरमाया इस्तेहबाब के दर्जे में है, अगर कोई कर दे बे ताकि बिल्कुल 100% नीयत क्लियर हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसको लाजिम ना समझे, ठीक हो गया। बाकी रहा मसला 2 रकात ईद उल अज़हा वाजिब, 7-6 तकबीर ज़ायद, पीछे से मांग के अल्लाहु अकबर। सौखी जी अलामत तो दसे नया, पहली रकात में पहले तकबीरें होंगी, निशानी याद रखना, पहली रकात में पहले तकबीरें होंगी, दूसरी में बाद में होंगी, पहली में पहले तकबीरें होंगी। आसान सी निशानी है। तकबीरों का तरीका क्या है, पहले तो आप तकबीर तहरीमा कहेंगे, नमाज में दाखिल होंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने हाथ उठाने हैं हर तकबीर पर, जनाजे की तरह नहीं है ये, ठीक है। आपने हर तकबीर पर हाथ उठाने हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, क्यों, इसलिए कि अभी आपने फिर तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद हाथ बांध लें, क्यों, इमाम ने किरात करनी है, आपने किरात सुननी है। किरातुल इमाम लहू किरातुन, इमाम जो किरात करता है समझो मुक्तदी किरात कर रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया है, लिहाजा आप सब समझो किरात सुनेंगे तो आपकी किरात शुमार होगी। उसके बाद क्या होगा, रकू सजदे होंगे, उसके बाद फिर खड़े होकर नमाज तिलावत होगी, फातिहा की और तिलावत होगी कुरान की। उसके बाद क्या होगा जी, 3 तकबीरें होंगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने हैं, क्योंकि अब तिलावत नहीं करनी ना, हाथ नहीं बांध रहे, 3 दफ़ा हाथ छोड़ देने हैं। फिर चौथी तकबीर रकू की, रकू के बाद जो है फिर क्या होगा, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल। उसके बाद खुतबा सुनना है, खुतबा सुन के उसके बाद एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो ईद के दिन मिलने वाला रवाज है, रवाज, इसको कोई बंदा रवाज समझे तो जायज़ है, इसको कोई बंदा दीन समझे तो नाजायज़ है। ये दीन नहीं है मिलना, ईद वाले दिन स्पेशली मिलना, ये कोई दीन नहीं है, रवाज है। ते रवाजा वास्ते मस्जिद नहीं होती, बाहर रोड होता है। मस्जिद सुन्नत के लिए है, अल्लाह के हुक्म की अदायगी के लिए है, रवाजों के लिए मस्जिद नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप तमाम साथियों से, आप बेशक मिलें, इसको दीन न समझें, इसको एक रूटीन समझें, रवाज समझें, और फिर उसके बाद मिलना भी है तो मस्जिद से बाहर जाकर मिलें। क्यों, इसलिए कि इससे शोर शगफ मस्जिद के अंदर बड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं, शोर शराबा होता है। आराम से मुहज़्ज़ब अंदाज से बाहर निकलें, रोड पे खड़े होके, बेशक अज तुम 3 घंटे मिलते रहो, तुहानू इजाजत है, बाद कुर्बानियाँ करें।
ٹھیک ہے، چلے جی صفحے سیدھی کریں.